Good morning student. In last video we have done the previous question of this lesson, that is gravitation. So in this video we will do the next question of this chapter. So now sixth question is, what happened to the force between two objects if one part is the mass of one object is doubled? Okay, as we know that according to universal law of gravitation, F is directly proportional to the product of two object masses, whereas it is inversely proportional to the distance, the square of the distance between two objects. Suppose if there is two objects, one is A and second is B, and suppose its mass is capital M and its mass is small m, and the distance between them is D. Then according to universal law, F is directly proportional to the product of their masses, whereas it is inversely proportional to the square of the distance between two objects. So what is first part of the question? If the masses of one object is doubled, okay, so अगर हम इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हैं, सपोज एज वी नो डेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज m and the mass of B object is small m. So now if the mass of one object is double, suppose हमने इसके मास को डबल कर दिया, suppose it is equal to 2 multiply m then 2m. So now what is the force? Then F will equal to product of their masses, so m multiply 2m. So F is directly proportional, so capital M, small m and multiply 2. So this is equal to the previous equation. सो जो ये है हमारा प्रीवियस इक्वेशन के इक्वल है, और जो यहाँ पर जस्ट हमारा क्या आया, अगर हम मास को डबल करते हैं सो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आता है वो क्या आएगा, हमारा डबल होगा प्रीवियस के. सो इट विल बी 2 टाइम ऑफ द प्रीवियस फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल गेट डबल्ड. सो इस केस में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा इफ़ वी इंक्रीज द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देंगे. सो नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल. सो तब हमारे फोर्स पर, ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डबल कर देते हैं या फिर उसको ट्रिपल कर देते हैं. सो ओके, एज वी नो डैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ओके, सो सपोज इट इज ए ऑब्जेक्ट एंड इट इज बी ऑब्जेक्ट, so it is the distance. So according to the question, firstly if we double the distance, so suppose if we double the distance then d will be equal to 2d. अगर हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो वो 2d के इक्वल हो जाएगा. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो नाउ जो हमारा डिस्टेंस वो कितना है, 2d, देन 2d स्क्वायर. f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय 2 to the 4 and d square. So F is directly proportional 1 by d square whereas 1 by 4. So जो ये वैल्यू है ये सेम है हमारे प्रीवियस वैल्यू के. सो जो हमारा, अगर हम हमारे डिस्टेंस को डबल कर देते हैं सो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 1/4 होगी किसकी, हमारी प्रीवियस वैल्यू के. सो इफ़ वी
if we double the distance of one object, then the gravitational force become 1/4 of its original value. Next, if we triple the distance, then suppose now d is equal to 3d. हमने क्या किया, ट्रिपल करना है. So now put this value in this equation. So f is directly proportional 1/3d square. So अब हमें ट्रिपल करना था ये. So f is directly proportional 1/3 3 जा 9 and d square. So f is directly proportional 1/d square 1/9. So this is our previous value. ओके, सो ये हमारी प्रीवियस वैल्यू. और जब हमने इसको ट्रिपल किया, सो ये कितनी आ रही है, आ रही है 1/9 ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू और इट्स ओरिजिनल वैल्यू. सो ग्रेविटेशनल फोर्स become 1/9 of its ओरिजिनल वैल्यू. सो यहाँ पर जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या बन जाएगा, 1/9. नेक्स्ट है द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल. अगर हम जो मासेस है, पहले हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का डबल किया था, अब हमें क्या करना है, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल. अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर देते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी. Okay student, now again suppose if two objects are there, one is A object, one is B. Suppose starting mass is m1 and it's m2. Okay, so now according to gravitational law, force is directly proportional to the product of their masses. If we increase the mass or if the mass of both objects are double, so if masses of both objects are double, that means डबल करेंगे, सो जो मास ऑफ ए का कितना हो जाएगा, that is 2m1. हमने इसका डबल कर दिया. एंड नेक्स्ट मास ऑफ बी विल ऑल्सो 2m2. हमने क्या करना है, दोनों के मासेस को डबल करना. हमने डबल कर दिया. नाउ पुट दिस मासेस, एज वी नो डेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. सो 2m1 multiply 2m2. So F is directly proportional 2 to the 4 m1 m2. So m1 m2 और जस्ट यहाँ पर हमारा क्या है 4. अब ये देखो जो प्रीवियस है, डैट मीन्स कि अगर हम मासेस को डबल कर देते हैं, सो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. सो if we double the masses of both the object, then the gravitational force become 4 times of its original value. So next question is, what is the importance of universal laws of gravitation? मीन्स कि जो हमारा यूनिवर्सल लॉज है उसकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है. सो फर्स्ट, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ. कि जो ये फोर्स है वो क्या करता है,
सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को हमारी अर्थ के साथ बाइंड अप करके रखता है। सो वो कौन सा फोर्स है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज एज वी नो डैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। इसका जो नेचर है वो कैसा है? अट्रैक्ट करने का। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बाइंड में रहते हैं। सपोज इफ देयर इज वन ऑब्जेक्ट इज दिस एंड सेकेंड इज देयर, सपोज इट इज ए ऑब्जेक्ट एंड इट इज बी ऑब्जेक्ट। सो जो ए है वो बी को एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो बी है वो ए को सेम फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। डैट मीन्स जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। सो इस ढंग से जितना भी ये फोर्स है वो क्या करता है? हमें बाइंडर्स रखता है टू द अर्थ। सेकेंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो हमारा मोशन होता है मून का, जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, रिवोल्यूशन होता है, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है? ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। थर्ड, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ओके, सेम एज इट इज जितने भी जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। सो जो भी वो रिवोल्यूशन होता है वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है? जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड नेक्स्ट, फोर्थ इज द सी टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। सो जो भी हमारे सी टाइड्स होते हैं वो भी किसकी वजह से? जो किसी वजह से आते हैं? मून और सन की वजह से। सो फर्स्टली टाइड्स क्या होते हैं? द टाइड्स इन द सी फॉर्म बाय द राइजिंग और फॉलिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द सी ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन। डैट मीन्स जो हमारा सी वाटर लेवल है वो कई बार राइज हो जाता है और कई बार फॉल होता है, और किसके ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से? मून के और सन के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। सो ये भी किसकी वजह से है? बिकॉज यहाँ पर क्या कर रहा है? मून भी ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहा है और सन भी। सो उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो राइज होता है और फॉल होता है। सो वो क्या होते हैं? हमारे टाइड्स। जो टाइड्स है वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? डैट मीन्स जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल का क्या होता है? एज वी नो डैट ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी है वो क्या करती है? हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से रिलीज़ किया जाता है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने उस पर और कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, जस्ट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं किसी भी हाइट से, सो वहाँ पर एक चेंज इन वेलोसिटी आती है। डैट मीन एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एंड वी नो डैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो हमारी जी की वैल्यू होती है वो हर जगह डिफरेंट होती है, लाइक अर्थ पर डिफरेंट है, मून पर डिफरेंट है। सो जो हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशन की जो हमारे अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट?
डैट मीन्स जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? सो वो होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Amit buy few grams of gold at the pole. As per the instruction of one of his friends, he hands over the same when the meets him at the equator. That means जो अमित है वो क्या करता है? गोल्ड को बाय करता है, कुछ ग्राम जो गोल्ड वो बाय करता है एट द पोल्स. अपने फ्रेंड के कहने पर वो कहाँ पर ले रहा है? पोल्स पर. ओके उसके बाद वो सेम गोल्ड को वो हैंड ओवर कहाँ पर कर रहा है? इक्वेटर पर. विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड? वो क्या जो उसका फ्रेंड है जो उसने उससे गोल्ड लिया है, क्या वो उससे एग्री होगा? इफ नॉट वाई, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? सो यहाँ पर हमें एक हिंट भी गिवन है. द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर. कि जो हमारे जी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है पोल पर एज कंपेयर टू द इक्वेटर. फॉर एग्जाम्पल जो हमारी अर्थ है इट इज़ नॉट इन सर्कुलर शेप. जो हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल या सर्कुलर शेप में नहीं होती. इट इज़ इन एलिप्टिकल शेप लाइक दिस. सो जो हमारी अर्थ है वो एलिप्टिकल शेप में होती है. सो इट इज़ द पोल एंड इट इज़ द इक्वेटर. सो जो रेडियस है वो पोल से अर्थ की जो रेडियस है वो कैसी होती है? कम होती है. सो रेडियस इज स्मॉल वेयर एज इन दैट एरिया जो हमारी रेडियस होती है वो क्या होगी? यहाँ पर मैक्सिमम होती है. सो एट द केस ऑफ पोल द रेडियस इज मिनिमम वेयर एज इन द इक्वेटर रेडियस इज मैक्सिमम. एंड वी नो डैट जो हमारी जी की वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के. सो यहाँ पर पोल पर क्या होगा? अगर रेडियस कम है डैट मीन्स जो हमारी जी की वैल्यू है वो क्या होगी? मैक्सिमम. और इक्वेटर में अगर हमारी आर मैक्सिमम है डैट मीन्स जो हमारी जी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर हमारी मिनिमम होगी एज कंपेयर टू द पोल. सो पोल पर जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमारी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द इक्वेटर. एंड वी नो डैट जो वेट है वेट इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई जी वैल्यू. सो अब सपोज करो कि अगर कोई फ्रेंड है, सपोज इट्स मास, आप जस्ट वैसे हम सपोज कर लेते हैं कि जो मास है ऑब्जेक्ट का वो 1 kg है. ओके और जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू है, सपोज करो कि यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 9 है. ओके सो यहाँ पर अगर पोल पर सपोज कर ले कि हमने वैसे हमारी 9.8 होती है बट सपोज करो कि यहाँ पर हमारी 9 है. जस्ट सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं. सो यहाँ पर तो उसको 9 का वेट था हमारे गोल्ड का. अब अगर वो इक्वेटर पे गया तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है, सपोज करो वहाँ पर 8 है तो वहाँ पर उसका वेट उसको 8 मिला. अब उसने दिया 9 था उसको मिल 8 रहा है तो वो तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगा, एग्री नहीं करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ. सो ये किस पर डिपेंड हुआ? ये डिपेंड करता है हमारी वैल्यू ऑफ जी पर. सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? एज वी नो डैट वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज गिवन बाय W multiply mg. Okay, so the value of g is greater at the pole than at the equator. So therefore gold at the equator weight less than at the pole.
सो डैट मीन्स जो इक्वेटर पर वेट था वो गोल्ड का लेस होगा किसके कंपैरिजन में, पोल के कंपैरिजन में। हैंस अमित's friend will not agree with the weight of the gold ball, so वो अपने फ्रेंड से एग्री नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth। कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो क्या है, वो 1/6 है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ का। सो ये हमने जब लेसन किया था सो उसके अंदर हमने ये डेरिवेशन किया था कि जो भी हमारा वेट होता है मून पर वो किसके इक्वल होता है, 1/6 वेट ऑन अर्थ। वट इज़ द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून। सो अब हमें वेट निकालना है न्यूटन में। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका वेट है, डैट मीन्स यहाँ पर हमें मास गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 10 kg। सो हमें अब इसका निकालना वेट मून पर भी और अर्थ पर भी। सो एज वी नो डैट जो वेट है वेट इज़ इक्वल टू mg, कि जहाँ पर भी हम उसका वेट निकाल रहे हैं, सपोज अगर हम अर्थ पर निकाल रहे हैं तो अर्थ की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे मास को, अगर हम मून पर निकाल रहे हैं तो मून की ग्रेविटी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्टली एज वी नो डैट द अर्थ ग्रेविटी इज द जी वैल्यू ऑन द अर्थ इज 9.8। सो अर्थ पर कितनी है, 9.8। सो मास ऑलरेडी गिवन 10 मल्टीप्लाई 9.8 दैट मीन्स 98 न्यूटन। सो जो ये वेट आ गया ये कहाँ पर आया, ऑन द अर्थ। सो जो ये वेट है ये कहाँ पर है, अर्थ पर। अब अगर हमें मून का फाइंड करना है सो वी कैन इजली फाइंड आउट द वेट ऑन द मून। एज वी नो डैट वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई वेट ऑन द अर्थ दैट इज 98 न्यूटन। सो जब हम इसको कट करते हैं सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 106.3 न्यूटन। सो जो ये वेट आया ये कहाँ पर आया, हमारा मून पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।